أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کی جس آیت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تین عمومی تراجم جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے تین مشہور ترجمے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یہ عمومی طور پہ تین تراجم ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت کے اندر وہ کون سی خاصیت ہے کہ وہ انسانوں کو انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کون سی خاصیت ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اہم ترین پیغام اس کے اندر موجود ہیں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ شاید یہ سننے کے بعد آپ کو اس آیت سے اور مزید محبت ہو جائے گی۔ آپ اسے جب بھی تلاوت کریں گے، آپ اسے جب بھی پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کو اپنے اندر جذب کر لے گی اگر آپ اسے سمجھیں اور اس کو جانیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ پچھلے پروگرام میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ با اختیار لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو بے اختیار ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم سیق کا ورڈ استعمال کرتا ہے۔ وہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت اور سیق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ اور ہدایت کے لیے ایک اور بڑی کمال چیز ہے، قرآن میں ہدایت کا لفظ جو ہے وہ جسے ہم ہدایت کہتے ہیں، اور ایک دوسرا لفظ ہے اسے کہتے ہیں رشد۔ رشد تو ہدایت کہتے ہیں کہ کسی صحیح راہ پر آپشنل با اختیار ہو کے کسی صحیح راہ پر چل نکلنا، اور رشد کہتے ہیں کہ نہ صرف چل نکلنا بلکہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، زندگی کے کسی موڑ پر اس سے الگ نہ ہونا، اسے رشد کہا جاتا ہے۔ میں بھی ایک انسان چلا ہے ہدایت پر اور آگے چل کے اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اس کو ترک کر دیا ہے، لیکن راشد وہ ہے، رشد راشدین جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اگر اس راہ پر چلے ہیں تو پھر ساری زندگی اسی التزام کے اندر گزر گئی ہے۔ تو یہ اس سے اگلا پہلو جو ہے یہ بھی آپ کو قرآن کے اندر ملے گا، ہدایت اور رشد کا لفظ۔ لفظ صراط، اس کے لیے پچھلے پروگرام سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں طریق، سبیل اور صراط میں کیا فرق ہوتا ہے۔ صراط کہتے ہیں حجم کے لحاظ سے اتنا بڑا راستہ کہ جو چھوٹے چھوٹے راستے جہاں سے آپ آ رہے ہیں وہاں سے اگر آپ بھٹکیں بھی تو آپ پلٹ آئیں واپس اسی بڑے اس راستے کی طرف کہ جس کا حجم بہت بڑا ہے۔ لیکن صراط کے لیے ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے راہ۔ راہ کے لیے ہم اب طریق کہتے ہیں راستے کو، سبیل کہتے ہیں راستے کو، صراط کہتے ہیں راستے کو، لیکن ان تینوں لفظوں کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ قرآن کریم طریق اس راستے کو کہتا ہے کہ جو کسی کے جانے کے بعد کوئی چلا ہے اور اس پر آپ چل پڑے ہیں، ایک کام ہے وہ کسی نے کیا ہے اور پھر وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ طریق ہے، یہ راستہ ہے، طریقہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ سبیل کہتے ہیں وہ راہ کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ صراط جو ہے یہ معنی اس کا بہت بڑا معنی ہے۔ اس میں سب سے آسان ترین مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، تو کیا آپ کے پاس کوئی راہ ہے؟ کیا ان مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ تو یہاں پر یہ لفظ جو ہے نا بالکل عین توزین کے ساتھ پورا اترتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، آگے چل کے آپ دیکھیں اس پر ہم بات کریں گے، ابھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط جو ہے اس لفظ کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے جو سب سے اہم ترین لفظ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یقین کیا ہوتی ہے؟ یہ مستقیم ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، اور یہ قائم کا لفظ بھی اسی سے، ٹھیک ہے، یہ لغت میں ایسے ہی ہے، کسی چیز کا قائم ہو جانا، ثابت قدم ہو جانا، سیدھا ہو جانا۔ قم کہتے ہیں اٹھنے کو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے،
और इसी कुम से कौम होती है कि वो खड़ी होती है अपने पाँव पर, इसी से क़याम है, इसी से तक़वीम है। तो ये क़ीम है, क़ीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, इसको देखने के लिए एक छोटा सा वाक़या मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आज दोबारा करता हूँ। अरब जो हैं वो जब सफ़र करते थे तो रात का सफ़र जो है वो बड़ा अजीब था। रात में वो किसी एक मकाम पर रुके हैं और हवा चली है, तो रेत जो है वो हर रात अपना मकाम तब्दील करती है। आपने किसी एक मकाम पर खैमे लगा लिए हैं और आप सहरा में हैं, तो सुबह जब आप उठेंगे तो चूंकि रेत जो है वो हरकत में आई और यहाँ से वहाँ हुई, तो उससे नए टेले बन गए, नई चोटियाँ बन गई, तो उससे सहरा का नक्शा जो था वो तब्दील हो गया। तो वो बद्दू क्या करते थे कि जब वो सुबह उठते थे तो वो देखते थे कि रात तो है वो बड़ा तूफान था और रात बड़ी हवा चली है, तो वो क्या करते थे कि वो जो उनका अमीर होता था वो उन टेलों में से किसी एक ऐसे टेले का इंतखाब करता था जो बाकी टेलों से मुख्तलिफ होता था और ऊंचा होता था। मीन्स कि उसकी ऊंचाई को देखा जाता था कि वो जो सबसे ऊंचा होता था उसका वो इंतखाब करता था। अच्छा, जब वो उस पर चढ़ना शुरू करता था, उस टेले पर जब चढ़ना शुरू करता था, तो वो आप जानते हैं कि रेत में जब आप एक कदम रखते हैं तो वो धंस जाता है, वो निकालते हैं तो दूसरा धंस जाता है। यूं आप धंसते कदमों से उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। ये बड़ा थका देने वाला अमल है। आज भी रेत पर चलने वाले इंसान आज भी जानते हैं ये बड़ा थका देने वाला अमल है, लेकिन चूंकि वो बद्दू हर लम्हा उस ऊपर नीचे होने से एक पांव धंसा, उसको निकाला तो दूसरा धंस गया, यूं वो अप डाउन्स में उसके कदम जो हैं वो बढ़ा रहा है वो अपने आप को, लेकिन वो थक इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो हर लम्हा बुलंद हो रहा है। वो थक इसलिए नहीं रहा कि वो बद्दू हर लम्हा बुलंद हो रहा है। वो अपनी थकावट को अपनी उस जाज़बियत से देख रहा है कि हर लम्हा मंजर बदल रहा है क्योंकि वो बुलंद होता चला जा रहा है। ये उसके कदमों का अप डाउन्स होना, ये है उसकी तक़वीम। तक़वीम तक़वीम में ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ किसी एक ही कंडीशन के अंदर इंसान होता है, उसमें अप डाउन्स होते हैं। आप अगर हॉस्पिटल जाएं तो आप देखें मरीजों के साथ जो मॉनिटर लगा हुआ होता है, जो मॉनिटरिंग हो रही होती है उसकी, तो वहां पे उसकी लाइफ लाइन चल रही होती है। उसमें आप देखते हैं कि वो एक लाइन है जो अप डाउन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, और यही उसकी जिंदगी की अलामत है। जहां वो लाइन सीधी होती गई कि जो हमें बताया जाता है आमतौर पे कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो वो जो मॉनिटर वाली लाइन है वो अगर सीधी होती जाए तो वो तो काम तमाम हो जाता है। तो इंसान की तक़वीम जो है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, ये उसका अप डाउन होना है। उसकी ज़िंदगी में, उसके मामलात में, उसकी ज़ात में, उसके किरदार में, उसकी बात में, इन सारी चीज़ों में उसकी अप डाउन्स होगी। इसी के अंदर तक़वीम है, यही रानाई है, यही जाज़बियत है, यही खूबसूरती है। तो तक़वीम को अब आप देखेंगे कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, एक आप बाइख्तियार हैं, आप हिदायत याफ्ता हैं। अगला सिरात, राह आपको ऐसी मिल गई है कि जिसमें आप अपने मौजूदा दौर में, मौजूदा माशरे में आपको उस बद्दू की तरह बुलंद होना होगा। अपने आप के अंदर वो तक़वीम पैदा करनी होगी, और वो याद रखें कि वो बुलंद हो रहा है, हर कदम बड़ा धसा देने वाला, बड़ा थका देने वाला, बड़ा जो है वो हिम्मत तलब, लेकिन वो हर लम्हा धसते हुए कदमों से चूंकि वो बुलंद हो रहा है हर लम्हा, तो वो उसकी थकावट जो है वो उस पर हावी नहीं हो रही। बल्कि तो यूं आपको करना होगा कि आपने हर लम्हा अपनी ज़ात को बुलंद करना है, हर लम्हा। तो आप दुआ ये कर रहे हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ मेरे रब हमें हिदायत दे उन राहों की तरफ कि जो हमें हमारी मौजूदा हालतों से बुलंद कर दे, तक़वीम हो हमारे अंदर। तो जब कभी जो कौम अपने मौजूदा किरदार, अपने मियार से बुलंद होगी,
تو उस बुलंदी पे जब वो बद्दू पहुंचता था ना जी, उस चोटी के ऊपर, तो वहां पे जाके उसको पता चल जाता था, वो हम अगली आयत में बात करेंगे कि सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तीनों ग्रोहों को वो उस चोटी से देख लेगा। आप अगर अपने मौजूदा किरदार में बुलंद हैं, आप अगर इल्म में अमल में बुलंद हैं, तो आपको वो तीनों गिरोह आपके सामने खुल के आ जाएंगे, क्योंकि वो चोटी जो है वो आपको मौजूदा मुश्किलात के सहरा के हवाले से पूरी खबर दे देगी। वो बुलंदी आपको आगाह कर देगी। तो ये है कुरान, ये है सूरह फातिहा कि जो आपको आपके मौजूदा किरदार से बुलंद करती है, उठाती है, और यही हम दुआ कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपने एक काम करना है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता कि जो झूठा होता है और छुपाने वाला होता है, कुफ्र करने वाला होता है। तो ये आपने कायदा ज़हन में रखना है कि अगर इन दोनों बीमारियों में से कोई एक बीमारी भी मेरे अंदर या आपके अंदर मौजूद है, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझसे छिन जाएगी वो हिदायत है। अगर हिदायत छिन गई है तो कहाँ का राह और कहाँ की तक़वीम, फिर ऐसा कोई सिलसिला आपके सामने नहीं आएगा। तो आप जब दुआ कर रहे हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ऐ मेरे रब हमें हिदायत दे उस राह की तरफ कि जो हमें कायम कर दे, जो हमें हमारी मौजूदा सतह से बुलंद कर दे। और इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए ये जो तक़वीम है, ये जो अप डाउन्स हैं, यही तो उसकी चाशनी है, यही तो उसकी जाज़बियत है, यही तो उसकी खूबसूरती है। तो अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं सूरह फातिहा को मुकम्मल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। कोशिश यही है कि हम आपको आसान तरीन अल्फाज में सूरह फातिहा के वो असरार और वो जो रमूज़ हैं जो कम लोग जानते हैं, वो हम आपके सामने रखें। हमारी कोई भी बात हरफ आखिर नहीं है, हमारी कोई भी बात हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर का इख्तियार दुनिया के आखिरी इंसान के पास है। छोटी सी इल्मी काविश है, आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो हासिल कीजिए, अगर आपको मुनासिब नहीं लगी तो समझ जाइएगा कि एक छोटा सा तालिब इल्म आपकी इल्मी खिदमत नहीं कर सका। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।